آج کا جو ہمارا سبق ہے تجویدی یسن القرآن میں سے را کو موٹا پڑھنے کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ را کو باریک پڑھنے کا بیان۔ سبق نمبر ہے 22 اور صفحہ نمبر ہے یسن القرآن میں سے 30۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے تشدید والے حروف پر کھڑا زبر، تشدید والے حروف پر تنوین اور لام جلالہ کا قاعدہ بیان کیا گیا تھا، اور آج کے جو قاعدے ہیں وہ را کو موٹا پڑھنے کا بیان اور را کو باریک پڑھنے کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، دارالعلوم جدہ کی جانب سے تجویدی یسن القرآن کا آن لائن درس دیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے آؤ تجوید سیکھیں، اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے تجویدی یسن القرآن میں سے را کو موٹا پڑھنے کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ را کو باریک پڑھنے کا بیان۔ سبق نمبر ہے 22 اور صفحہ نمبر ہے یسن القرآن میں سے 30۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے تشدید والے حروف پر کھڑا زبر، تشدید والے حروف پر تنوین اور لام جلالہ کا قاعدہ بیان کیا گیا تھا، اور آج کے جو قاعدے ہیں وہ را کو موٹا پڑھنے کا بیان اور را کو باریک پڑھنے کا بیان ہے۔ اب آئیے حروف تہجی میں سے را اور لام، یہ دو ایسے حروف ہیں، کبھی ان کو موٹا بھی پڑھتے ہیں اور کبھی باریک بھی پڑھتے ہیں۔ لام کو لام جلالہ آئے تو کبھی لام کو پر اور کبھی لام کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ را کو موٹا پڑھنے کا بیان یعنی را کو پر پڑھنے کے 5 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، را پر زبر پیش 2 زبر 2 پیش کھڑا زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1 ہے را پر زبر پیش 2 زبر 2 پیش کھڑا زبر آئے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 2 ہے را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر را کو موٹا پڑھنے کا جو دوسرا قاعدہ ہے، را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 3 ہے را ساکنہ را موقوفہ سے پہلے کا حرف ساکین ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تیسرا قاعدہ ہے را ساکنہ یعنی را موقوفہ سے پہلے کا حرف ساکین ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ چوتھا قاعدہ بھی سماعت کر لیجئے، را ساکنہ سے پہلے اصلی زیر ہو اور را ساکین کے بعد حروف مستعلیہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، خص، ضغط، قذ میں سے کوئی حرف آئے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ را کو موٹا پڑھنے کا چوتھا قاعدہ را ساکنہ یعنی را ساکنہ سے پہلے اصلی زیر ہو اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، خص، ضغط، قذ میں سے کوئی حرف آئے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 5، را کو موٹا پڑھنے کا پر پڑھنے کا 5واں قاعدہ، را ساکنہ سے پہلے کسر عارضی زیر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ 5واں قاعدہ را کو موٹا پڑھنے کا،
रा साकिना से पहले कसरे आरजी जेर हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। ये 5 कायदे रा को मोटा पढ़ने के हैं। अब आइए रा को मोटा पढ़ने की पहली मिसाल। रा को मोटा पढ़ने का पहला कायदा क्या है? रा पर जबर पेश, 2 जबर 2 पेश, खड़ा जबर, ये 5 है। ये 5 हरकत है। देखिए रा पर जबर पेश, 2 जबर 2 पेश, खड़ा जबर, ये 5 हरकत हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। रा को पुर पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? रा को मोटा कैसा पढ़ेंगे? रा का मखरज क्या है? जबान की नोक ऊपर के दांतों के, जबान की नोक की पीठ ऊपर के दांतों के मसोड़ों को लगाकर, आप जबान ऊपर के दांतों के मसोड़ों को लगाएं और जबान को मोटी कर दें। रा की आवाज पुर निकलेगी। रो 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 अर। तो अजीज तलबा, जबान की नोक की पीठ ऊपर के दांतों के मसोड़ों को लगाकर रा अदा करें और रा जबान को मोटी कर दें। रा की आवाज पुर निकलेगी। रो अर युर। तो ये 5 हरकत हैं। रा पर जबर आ गया, रा को मोटा पढ़ेंगे। रो रो पेश आ गया, रा को मोटा पढ़ेंगे। रू रू 2 जबर आ गया, रा को मोटा पढ़ेंगे। रन रन 2 पेश आ गया, रा को मोटा पढ़ेंगे। रुन रुन खड़ा जबर आ गया, रा को मोटा पढ़ेंगे। रो रो ये 5 हरकत है। देखिए जबर पेश, 2 जबर 2 पेश, खड़ा जबर, ये 5 हरकत अगर रा के ऊपर आए तो रा को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह और एक मिसाल, 2 मिसाल आपके सामने रखूं। खैरन खैरन, यहां पर रा को 2 जबर आ गया, रा को मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह अदरौका अदरौका, यहां पर रा की अदरौका में रा को खड़ा जबर आ गया तो रा को खींचते हुए मोटा पढ़ेंगे। अदरौका। इसी तरीके से 2 पेश नसरुन, रा के ऊपर 2 पेश आ गया, मोटा पढ़ेंगे। नसरुन नसरुन। इसी तरीके से रब्बुन, 2 पेश आ गया, मोटा पढ़ेंगे। रब्बुन। यह है रा को मोटा पढ़ने का पहला कायदा, यानी रा पर जबर पेश, 2 जबर 2 पेश, खड़ा जबर है तो रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। अब दूसरा कायदा है रा साकिना से पहले जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। रा साकिना किसे कहते हैं? जिस रा पर सुकून हो उसे रा साकिना कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कायदा नंबर 2, अर युर। अब आप देखें रा साकिना से पहले जबर आ गया, रा को मोटा पढ़ेंगे। और रा साकिना से पहले पेश आ गया, जिस रा पर सुकून हो उसे रा साकिना कहते हैं। जिस हर्फ पर भी सुकून हो उससे रा साकिना कहते हैं। लाम पर सुकून है तो लाम सुकून कहते हैं। तो इसी तरह रा के ऊपर सुकून आ गया तो रा साकिना कहते हैं। तो रा साकिना से पहले पेश आ गया योर, तो रा को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। जबान की नोक की पीठ ऊपर के दाढ़ों को लगाएं और जबान को मोटी कर दें। योर योर और योर। इसी तरीके से और 2-3 मिसालें। योर सलू, योर सलू, रा साकिना से पहले पेश आ गया, रा को मोटा पढ़ेंगे। और सला, और सला रा साकिना से पहले जबर आ गया, रा को मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह मुरसलुन,
रा साकिना से पहले पेश आ गया मुरसलुन, अर युर युरसलु, अरसला, मुरसलुन। तो कायदा नंबर 2 क्या है? रा साकिना से पहले जबर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। कायदा नंबर 3 है रा साकिना रा मौकूफा से पहले का हर्फ साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। कायदा नंबर 3 देखिए, रा साकिना रा मौकूफा से पहले का हर्फ साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो सब्र, शुक्र। ये असल में है सब्रुन, शुक्रन। कायदा नंबर की क्या है? रा साकिना से पहले रा मौकूफा से पहले का हर्फ साकिन हो और उससे पहले ये सब्रुन शुक्रन है। इस पर अगर हम वक्फ करेंगे तो यहां पर पढ़ेंगे सब्र, रा को जज़म दे देंगे सब्र। शुक्रन पे अगर हम वक्फ करेंगे, रुक जाएंगे, तो रा को जज़म दे देंगे शुक्र। तो फायदा क्या है? रा साकिन रा मौकूफा से पहले का हर्फ साकिन हो, रा मौकूफा है, उससे पहले यानी सब्र में बा सुकून है और उससे पहले जबर है। तो कायदा क्या है? रा मौकूफा से पहले का हर्फ साकिन हो और उससे पहले जबर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। यहां पर सब्रुन है, लेकिन हम अगर रुके इस पे तो सब्र सब्र बोल के रुकेंगे। तो यहां पर रा मौकूफा से पहले का हर्फ साकिन है और उससे पहले जबर है तो रा को मोटा पढ़ेंगे सब्र सब्र। इसी तरह शुक्रन है, शुक्रन पे अगर वफ करेंगे तो शुक्र हो जाएगा। रा साकिना से पहले का हर्फ साकिन हो और उससे पहले पेश आ गया तो रा को पुर पढ़ेंगे शुक्र शुक्र। रा साकिना से पहले जबर और रा साकिना से पहले पेश। और इसी तरीके से शहर, शहर। इसी तरीके से फज्र, फज्र। इसी तरीके से युस्र, देखें आप शहर में रा साकिना से पहले का हर्फ साकिन है और उससे पहले जबर है। फज्र में रा साकिना से पहले का हर्फ जीम के ऊपर जज़म है और उससे पहले जबर है। युस्र में रा साकिना से पहले का हर्फ साकिन है और उससे पहले पेश है। तो ये तमाम मोटे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सब्र, शुक्र, शहर, फज्र, युस्र। यह रा को मोटा पढ़ने का तीसरा कायदा है। अब आइए रा को मोटा पढ़ने का चौथा कायदा। चौथा कायदा क्या है रा को मोटा पढ़ने का? रा साकिना से पहले असली जेर हो और रा साकिना के बाद हुर्फ मुस्तालिया खा, सौद, ज़ौद, गैन, तो, कौफ, ज़ौ, इसका जमा है खुस्सज़गतिन। इस 7 में से कोई भी हुर्फ आए तो रा को मोटा पढ़ेंगे। इसकी मिसाल इरसादन, इरसादन, इरतासुन, इरतासुन। अब आप देखें अजीज तलबा, चौथा कायदा क्या है? रा साकिना से पहले जेर हो। यहां पर रा साकिना से पहले जेर आ रहा है, लेकिन रा साकिन के बाद हुर्फ मुस्तालिया खा, सौद, ज़ौद, गैन, तो, कौफ, ज़ौ, ये 7 हुरूफ है। ये 7 हुरूफ इसलिए कि इन 7 हुरूफ की आवाज ऊपर जाती है तो इसलिए ये मोटे पड़े जाते हैं। तो ये रा साकिना से पहले जेर है, लेकिन रा साकिन के बाद हुर्फ मुस्तालिया में से सौद आ गया, सौद आ गया तो रा को पुर पढ़ेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे। इसी तरीके से क़िरतासुन में रा साकिना से पहले असली जेर है और रा साकिना के बाद खा, सौद, ज़ौ, खुस्सज़गतिन, क़िज़, ये 7 हुरूफ में से तो आ गया तो रा को पुर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इरसादन, क़िरतासुन। इसी तरीके से फिरक़तिन,
फिर कतिन, ये भी रा को मोटा पढ़ेंगे। इसी तरीके से मिरसादुन, फिर कतिन, रा साकिना से हुर्फ मुस्तालिया में से खौफ आ गया, रा को मोटा पढ़ेंगे। सौद आ गया, मिरसादुन में सौद आ गया, रा को मोटा पढ़ेंगे। इरसादन, क़िरतासुन, फिरक़तिन, मिरसादुन। तो रा को रा को मोटा पढ़ने का चौथा कायदा क्या है? रा साकिना से पहले जेर हो और रा साकिना के बाद हुर्फ मुस्तालिया खा, सौद, ज़ाद, ग़ैन, तो, क़ाफ, ज़ा, खुस्सा, ज़ग़तिन में से कोई भी हर्फ आए तो रा को पुर पढ़ेंगे। अब आइए अजीज तलबा, रा को मोटा पढ़ने का पांचवा कायदा हम जानने की कोशिश करेंगे। पांचवा कायदा क्या है? रा साकिना से पहले कसरे आरजी, आरजी जेर हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। कसरे आरजी किसे कहते हैं? मैं आपको इसकी मिसाल लिखते चलूं। इरजीई, इरजीई, अमिर ताबू, अमिर ताबू। इरजिई में ये जो अलिफ के ऊपर कसरा आया है, जेर आया है, ये आरजी जेर है। इससे पहले की जो आयत है वो कुरान मजीद की सूरत अल फज्र की आयत है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। उसके बाद है इरजिई। तो अगर हम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना को इरजिई से मिलाकर पढ़ें तो या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई। ये असल में आयत ये है, या अय्यतु हन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतु हन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई। तो आप देखें, या अय्यतु, या अय्यतु, या अय्यतु हन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई। तो ये इरजिई जो आया है यहां पर जेर नहीं है अलिफ के ऊपर, अलिफ के ऊपर कसरा है। तो रा साकिना से पहले जो हम ये जेर लगाए हैं इरजिई को, ये कसरे आरजी है। ये इस असल में क्या है? इरजिई से पहले पेश है। तो यहां पर ये कसरे का एतबार, ये पेश का एतबार करते हुए हम रा को मोटा पढ़ रहे हैं, इरजिई। तो यहां कुरान मजीद में क्या है? जेर नहीं है अलिफ को जेर नहीं है, बल्कि रा साकिन से पहले पेश आया। तो हम मिलाने की सूरत में अल मुतमइन्ना तुरजिई पढ़ते हैं। जब मिलाने की सूरत में रा को मोटा पढ़ेंगे इसलिए कि रा साकिना से पहले पेश है। तो हम मिलाए नहीं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना बोल के रुक गए। तो यहां पर जो हम जेर दे के पढ़ रहे हैं ये कसरे आरजी है, रा को मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह अमिर ताबू, अमिर ताबू। तो चौथा कायदा क्या है? रा साकिना से पहले कसरे आरजी, आरजी जेर हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। इरजिई, अमिर ताबू, इरतज़ा। ये एक मिसाल भी आती है, इरतज़ा, इरतज़ा, अलिफ के नीचे जेर है, इरतज़ा। तो ये पांच कायदे हैं, रा को मोटा पढ़ने के पांच कायदे हैं। रा पर जबर पेश, दो जबर दो पेश खड़ा जबर हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। दूसरा कायदा क्या है? रा साकिना से पहले जबर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। तीसरा कायदा क्या है? रा साकिना रा मौकूफा से पहले हर्फ साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। चौथा कायदा क्या है? रा साकिना से पहले
زیر ہو اور را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ خا صاد ضاد غین طا قاف ذا خص ذا غتن، یہ 7 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ را ساکنہ سے پہلے کسر عارضی زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہ 5 قاعدے ہیں، اس کو اپنے عزیز طلبہ اور طالبات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور بار بار اس کی قرآن مشق کریے، یسن القرآن میں سے اس کی مشق کریے، انشاءاللہ یہ آپ کو اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ اب آئیے، را کو باریک پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں۔ را کو باریک پڑھنے کے بھی 4 قاعدے ہیں۔ را کو موٹا پڑھنے کے 5 قاعدے اور را کو باریک پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں۔ قاعدہ میں آپ حضرات کو سناتا چلوں۔ را کو باریک پڑھنے کا بیان، را کو باریک پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں۔ را پر زیر 2 زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، را کو باریک پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں۔ را کو موٹا پڑھنے کے 5 قاعدے آپ کو بتلائے گئے۔ اب را کو باریک پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، را پر زیر 2 زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اب یہاں پر کھڑی زیر کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ پوری قرآن مجید میں را پر کھڑی زیر نہیں آتی سوائے ایک جگہ مجرحہ، جس میں مجرحہ میں ہمیں را کو زیر نظر آتا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں اس کے علاوہ را کے اوپر زیر نہیں ہے۔ تو را پر زیر 2 زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 2، را ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 2، را کو باریک پڑھنے کا، را ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 3، را کو باریک پڑھنے کا تیسرا قاعدہ، را ساکنہ را موقوفہ سے پہلے کا حرف ساکین ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 3، را ساکنہ یعنی را موقوفہ سے پہلے کا حرف ساکین ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ چوتھا قاعدہ را کو باریک پڑھنے کا، چوتھا قاعدہ، را ساکنہ را موقوفہ سے پہلے یائے لینا یا لینا یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو زبر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ را ساکنہ را موقوفہ سے پہلے یائے لینا یعنی یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ چاروں قاعدے کی مثال، را کو باریک پڑھنے کے چاروں قاعدے کی مثال، را کو باریک پڑھنے کا کے 4 قاعدے ہیں۔ را کو باریک پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلے قاعدے کی مثال آسان ہے، را پر زیر، را پر زیر، را پہ زیر آ گیا 2 زیر آ گیا، را پر زیر 2 زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ باریک پڑھیں گے، منہ پھیلا دیں، آواز باریک نکلے گی، ری رن، ری رن۔ اور ایک 2-3 مثالیں، رجالن، رجالن، را پر زیر آ گیا، رجالن میں را کو باریک پڑھیں گے۔ امرن، امرن، را پہ 2 زیر آ گیا، امرن میں را کو باریک پڑھیں گے۔ بالکل آسان قاعدہ ہے، را پر زیر 2 زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ باریک پڑھنا کیا ہے؟ آواز کو پھیلا دینا ہے، منہ کو پھیلا دینا ہے، ری رن، رجالن، ریحن، القدری، القدری، یغفر لکم نہیں، یغفر لکم نہیں، رحلتن، رحلتن، امرن، امرن، رحلتن، رحلتن۔ را ساکنہ سے پہلے را پر زیر آ گیا، رحلتن میں را کو باریک پڑھی، رحلتن۔ اب آئیے را کو موٹا باریک پڑھنے کا دوسرا قاعدہ، را ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے فرعون، را ساکنہ سے پہلے فا کے نیچے زیر آ گیا تو را کو باریک پڑھیں گے، فرعون، فرعون۔ اسی طرح سے اور ایک مثال، یغفر لکم، یغفر لکم۔ یہاں پر یغفر لکم میں را ساکنہ سے پہلے زیر آ گیا، را کو باریک پڑھیں گے، یغفر لکم۔ اب را کو باریک پڑھنے کا تیسرا قاعدہ، را ساکنہ را موقوفہ سے پہلے کا حرف ساکین ہو اور اس سے پہلے
जेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। तीसरा कायदा देखिए आप, मिसाल लिख रहा हूं तीसरे कायदे की, हिज्र, ये हिज्र है। और एक मिसाल बिक्र, अब आप देखें रा साकिना, उससे पहले हर्फ साकिन और उससे पहले जेर है। हिज्र में रा के ऊपर सुकून है, रा साकिना, जिम के ऊपर सुकून है और उससे पहले हा पे जेर है हिज्र में, तो रा को बारीक पढ़ेंगे हिज्र। बिक्र में रा साकिना है, रा के ऊपर सुकून है, रा साकिना हो गई और उससे पहले काफ है, काफ के ऊपर सुकून है, उससे पहले बा के नीचे जेर है, तो बिक्र, बिक्र ये बारीक पढ़ेंगे। एक और मिसाल कबीर, कबीर, कबीर में देखें आप रा साकिन है और उससे पहले या है, या के ऊपर क्या है आपको सुकून है और उससे पहले बा के नीचे जेर है, तो खींचते हुए इसको रा को बारीक पढ़ेंगे कबीर, कबीर। और रा को बारीक पढ़ने का चौथा कायदा, चौथा कायदा क्या है, रा साकिना, रा मखूफ से पहले या लीना, यानी या साकिन से पहले जबर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। जैसे गैर, गैर, खैर। और एक मिसाल उज़ैर, ये तीन मिसाल हैं। अब आप देखिए कायदा नंबर 4 क्या है रा को बारीक पढ़ने का, रा साकिना, रा के ऊपर सुकून है, रा साकिना, उससे पहले रा मखूफा से पहले या लेना, यानी या साकिन से पहले जबर है, या साकिन से पहले जबर है, तो रा को मोटा पढ़ेंगे। रा सुकून है, उससे पहले या है, या साकिना है, यानी या साकिन से पहले जबर है, तो रा को मोटा पढ़ेंगे। यहां पर जबर आ रहा है, लेकिन हम क्या देखेंगे, रा साकिना से पहले जो या आ रहा है खैर में, गैर में, उज़ैर में, ये क्या है, रा साकिना से या लीना आ रहा है, तो इसलिए रा को क्या करेंगे हम, मोटा बारीक पढ़ेंगे। गैर, खैर, उज़ैर। तो रा को बारीक पढ़ने के 4 कायदे मैंने बोर्ड पर आप हजरात के सामने लिखा। रा पर जेर, दो जेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे, पहला कायदा। दूसरा कायदा, रा साकिना से पहले जेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। तीसरा कायदा, रा साकिना, रा मखूफा से पहले हर्फ साकिन और उससे पहले जेर हो, रा को बारीक पढ़ेंगे। चौथा कायदा, रा साकिना, रा साकिना, रा मखूफा से पहले या लीना, यानी या साकिन से पहले जबर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ये 4 कायदे रा को बारीक पढ़ने के हैं, इसको अपने जहन में बिठा लें और जहन में महफूज कर लें। और आखिर में तजवीद यस्सिन अल कुरान में नोट बतलाया गया है। नोट क्या है, इसको आपको पढ़ के सुना दो। रा पर तजदीद हो तो उससे पहले की हरकत को नहीं देखेंगे, बल्कि रा मुशद्दद पर जबर या पेश हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। रा मुशद्दद पर जेर या पेश हो, जेर जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। यानी ये जो कायदे बतलाए गए हैं रा को बारीक पढ़ने के, मोटा पढ़ने के, ये रा साकिना से पहले अगर रा पर तजदीद आ गए, रा पर तजदीद आ जाए तो फिर उससे पहले की हरकत को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि रा के ऊपर तजदीद आके अगर जबर पेश आ गया रा को मोटा पढ़ेंगे। रा पर तजदीद आके रा के नीचे जेर, दो जेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। मिसाल आपको जुर्री, जुर्री में देखें आप रा पर तजदीद है, रा पर तजदीद है और रा पे जेर है, तो आप रा को बारीक पढ़ेंगे। इससे पहले की हरकत को नहीं देखेंगे, रा को देखेंगे तो आप रा से पहले पेश है, रा के ऊपर रा साकिना है तो आपको कायदा बनता है। यहां पर रा मुशद्दद है तो यहां पर रा के नीचे जेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। जुर्री, इसी तरह से जुर्रिन, देखिए आप रा पर तजदीद है, दो जेर आ गया तो रा को बारीक पढ़ेंगे। अब इसी तरह रा पर अगर जबर पेश आ गया तो रा को मोटा पढ़ेंगे। बिर्रन, बिर्रन, बिर्रन में देखें आप रा पर दो जबर आ गया तो रा को मोटा पढ़ेंगे बिर्रन। इसी तरीके से रा पर अगर खाली जबर आ गया तो भी रा को मोटा पढ़ेंगे। अश्शर्रा, अश्शर्रा, अश्शर्रा में देखें आप रा के ऊपर जबर आ गया तो रा को मोटा पढ़, तो यानी नोट में यह बतलाया गया है कि रा पर तजदीद हो तो जो तजदीद होगी, तजदीद वाले ऊपर जो जबर होगा पेश होगा तो रा को मोटा पढ़ेंगे। जेर होगा, दो जेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। जैसे बिल बिर्री,
ذر شر الشر وغیرہ. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.